Hello everyone, welcome back. And students, today we are going to start our chapter 6, that is perimeter and area, part 2, with the section everyday mathematics. And today's first question is, Priti makes a toy using 6 identical square blocks and 2 identical equilateral triangular blocks as shown in figure. The perimeter of the whole figure is 108. Okay, so perimeter of the figure is already given. Perimeter of figure, let's write down, that is 108 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आउटसाइड का हम बाउंड्री चेक कर लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 साइड्स हो गई है ना. 12 sides is equal to 108 centimeter. No need to write the units here. So side is equal to, what do you need to find? You need to find the length. Side is equal to 108 upon 12. So that is 9. The side is equal to 9. Okay. What's the option? That is C. The C option will be your correct answer. Question number 22. A farmer has two fields. One is rectangular and other is square. The length and the breadth of a rectangular field is this and this. Means यहाँ पे हम दो cases बना लेते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आपका rectangle है और ये क्या है आपका एक square है. अब rectangle के केस में लेंथ कितना है? That is 1400 और breadth कितना है? That is 800 मीटर और ये भी 800 मीटर. The side of the square और side भी कितना दे रखा है? That is 900 meter. Which field has a more perimeter and by how much? तो perimeter निकालो, that is 2L plus B. अब 2, yes, बताइए मुझे. 1400 plus 800. Now 2, 0, 0, 4, 8, 12, 1 and 2 and 0, 0, 2 2 are 4 और 4400 मीटर आपके पास ये आ गया. स्क्वायर का पेरीमीटर निकालोगे तो 4 into side, yes. Now 4 into side means 900. Again double zero, 4 9s are 36. तो किसका लग रहा है ज्यादा? यहाँ पे मीटर लिख देते हैं. तो ऑब्वियस मुझे तो लग रहा है कि रेक्टेंगल का ज्यादा है ना, रेक्टेंगल का ज्यादा है. लेकिन कितना ज्यादा है तो आप माइनस करके देख लीजिए. तो 4400 में से 3600 को माइनस कर दीजिए. तो 14 minus 6 8, 800 से ज्यादा है. तो किसका ज्यादा था? रेक्टेंगल का ज्यादा है. इट मीन्स बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो गलत है. रेक्टेंगल का ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा था? 800 मीटर से. डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर. Question number 23. Karan walked around a square park whose side is 25 meter. Each day he walked 3 times. ठीक है, सबसे पहले फिर से हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 into side. स्टूडेंट्स बार बार ये लिखो ताकि आपको याद रहेगा. 4 into side means 4 into 25. 4 into 25 that is 100. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 3 टाइम्स कर रहा है. ठीक है, 3 टाइम्स पार्क के करता है. तो 100 into 3 that is 300 meter. How much distance he walk in a week? Each day he walk. Each day के लिए 300 है. तो week में कितने days होते हैं? Like 7 days है ना, 7 days in week. तो 300 into 7 that is 0 0 and 2100. 2100 मतलब D option will be your correct answer. Now student, we have a question number 24. 4 poles are stuck in the square ground of side 30. ठीक है, square ground of side 30 means side of square दे रखा है. Side of square कितना है? That is 30 meter at the four corners. A wire fence is to be put around the poles. ठीक है, तो means इस तरीके से कुछ ground square है. यहाँ पे 1 pole है, यहाँ पे second है, यहाँ पे third है और यहाँ पे 4 है. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक fencing लगानी है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से जो fencing लगाओगे it means हमें perimeter चाहिए. तो perimeter क्या होता है? That is 4 into side. 4 into side means 4 into 30. That is 120 मीटर. ठीक है, अब क्या करना है? 2 टाइम्स लगाना है. तो 2 टाइम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स के लिए आपको 120 को 2 से इंटू करना पड़ेगा. 0 और 240 मीटर. तो वी हैव ऑप्शन नो. सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. दैट इज नन ऑफ these. Now question number 25. The length of a rectangular park is 5 by 2 time of its breadth. Okay, it means L is equal to 5 by 2 of B. Now perimeter is also given. तो perimeter क्या है? Perimeter का फॉर्मूला क्या रहता है? 2L plus B है ना. तो perimeter हमें 210 दे रखा है. That is 2 L as it L की जगह हम लिख सकते हैं. Yes, 5 by 2 of B plus B. Now we will solve this. तो what we will get?
Obvious, we will get the value of b here, 2. Now 2 will be LCM, 5b plus 2b, or let it be a full bracket, 210 is equal to 2 or 2 will be cancelled, 5 plus 2b is equal to 7b. Therefore 210 by 7 by ट्रांसपोज मेथड क्या हो जाएगा 30. तो b इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 30, राइट. जब b आपके पास 30 हो गया, देयरफॉर हम l भी निकाल सकते हैं, दैट इज 5 by 2 into 30, तो 15. तो 15 5 जा 75. नाउ l वी हैव, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं ग्रीन पेन से. ये आपके पास एल भी हो गया और आपके पास बी भी है, ठीक है. आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज 75 and breadth is 30. Now 0 will be there, 5 3s are 15, 1 21 and 2250. So 2250 we have, yes, so A option will be your correct answer. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम रेक्टेंगल्स में ना कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा. तो एक एक रेक्टेंगल के एरियाज को निकाल के हम क्या करते हैं, प्लस कर लेंगे. तो मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल 1 है, ये रेक्टेंगल 2 है, ये रेक्टेंगल 3 और ये रेक्टेंगल 4 है, ठीक है. तो एरिया रेक्टेंगल 1 कैसे आएगा, 4 इंटू 1 4. रेक्टेंगल 4 का ये पूरा 15 है और ये 1 है, तो 15 इंटू 1 15. रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 का एरिया देखो, ये पूरे का पूरा है, तो ये तो आपने निकाला है अभी, दैट इज 3 प्लस 4 7 और ये बन गया 13. और इसकी ब्रेथ कितनी है 3, दैट इज 39. और रेक्टेंगल 3 का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल 3 का, ये टोटल 15 है, इधर से 2 माइनस कर दिए ये वाला और ये 1 माइनस कर, तो 15 माइनस 2 12 और ब्रेथ कितना है 1, दैट इज 12. तो सबको प्लस कर दो, 15 प्लस 4 19, ठीक है. 19 और 12 1 31, 31 और 39 दैट इज 0 और 70, राइट. तो 70 कहाँ पे, 70 सी है, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, now question number 27. Study the given figure and carefully select the incorrect option. तो students be careful because हम flow में सिर्फ correct answers ढूंढने लगते हैं, but यहाँ पे आपको बताना है कि incorrect कौन सा है. तो area of BHGC पे करते हैं, ये वाला थोड़ा सा shade कर देती हूँ मैं. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एरिया निकालना है. 6 दे रखा है, ये 4 है, तो ये भी ऑब्वियस पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 5 से आया होगा. तो ये अगर 5 है, ये अगर 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा. तो एरिया ऑफ BHGC जो कि हमें दिख रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल. तो क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 6 30, राइट. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है. पेरीमीटर ऑफ DEFG, DEFG पेरीमीटर 3 7, यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ DEFG. तो 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस ये 6 था तो ये भी 5 था, 6 प्लस 5 तो 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20 और ये बन गया 26. हाँ, तो ये भी करेक्ट हो गया. तो ये तो हमारा तो आंसर नहीं है, तो इसको क्रॉस ही कर दो, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर, पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, तो हमें सारा पता चल गया. अभी चलो प्लस करते हैं, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं DA से, ठीक है. तो DA प्लस AB प्लस BH प्लस HG प्लस GF प्लस FE प्लस ED हो गया. D से स्टार्ट किया, D पे खत्म. इससे हमें पता चल गया कि हमने सारी साइड्स क्या कर ली, इंक्लूड कर लिए. अब DA कितना है 5, AB कितना है 5, BH कितना है 6, HG कितना है 5, फिर 5, फिर FE कितना है 7 प्लस 3 हो गया. तो अभी प्लस करते हैं, 10 प्लस 6 बोले तो 5 बोले 1 2 3 4, 20 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 7 दैट इज योर 29 प्लस 7 29, 30 31 32 33 34 35 36 36 हो जाएगा. पर यहाँ पे 72 है, तो ये क्या हो गया आपका पास गलत आंसर. तो इसीलिए आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आपके पास सी ऑप्शन क्या बन गया, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले फटाफट से रीड आउट करो, जो आपको आसान लग रहा है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। अ स्क्वायर ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर्स हैं। तो 13 इंटू 4 दैट इज 52, ठीक है। तो पी के साथ 2 मैच हो रहा है, पी के साथ 2 मैच कहाँ पे हो रहा है, तो सी और डी ऑप्शन तो गया, तो मीन्स ए और बी में से कुछ होगा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 15, तो मीन्स यहाँ पे भी 3 इंटू 15 दैट इज 45। इट मीन्स आर के साथ आना चाहिए 4, आर के साथ 4 कौन सा है, आर के साथ 4 है बी, राइट। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके आप थोड़ा सा अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 दैट इज 40, और भी पता चल जाएगा। तो एस के साथ आना चाहिए 3, एस के साथ आना चाहिए 3, तो बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, फिर से करेक्ट आंसर ही हो रहा है। Question number 29. Read the following statement carefully and select the correct option. Okay, statement 1 है, square field has an area this. The length of the rope required to fence the field is this. तो अगर आपके पास area दे रखा है that is 729 and length आपको निकालनी है, तो area क्या होता है, side into side, right? That is 729. अब 108 तो 108 को 2 टाइम्स करोगे तो 8 8 64, नो, तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसको तो 2 टाइम्स करके 729 नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स। तो वह फॉल्स कहाँ पे है, तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो सी और ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लेट्स सॉल्व ना बी स्टेटमेंट। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज दिस, लेंथ आपके पास कितना है 22 और ब्रेड्थ कितना है 12। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, तो इफ द कॉस्ट, कॉस्ट के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज 22 इंटू 12, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2 4 4 2 2, तो 4 6 264 और 1 स्क्वायर के लिए 150 है, तो 264 को किसके लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 150 के साथ, 0 0 0 5 4 20 0 2 30 2 and 3 10 और 13 और 4 6 and 2, तो 0 0 सॉरी 6, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 9 और 3, तो 39600, यस। हाँ, तो बी स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो हमने इसे शॉर्ट लिस्ट किए थे बी और डी, तो ट्रू है, ये तो नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या बन गया आपके पास करेक्ट आंसर। Okay, now today's last question is 30th. The given figure not drawn to scale is the layout of society. There are 2 parks and park sand. Find the area of the square park. तो square park कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये वाला, ठीक है, अनशेडेड वाला। तो यहाँ पे ये अगर 3 साइड है, तो ऑब्वियस ये भी 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 और ये 3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 मीन्स अनशेडेड वाला, राइट, अनशेडेड वाला है, दैट इज 3 इंटू 3 9। नाउ नेक्स्ट इज शेडेड पार्ट, तो इसको अगर हम थोड़ा ज्वाइन कर लें तो ये बन गया रेक्टेंगल, ये 4 साइड है तो ये 4 साइड है, ये पूरा 3 है, तो ये 2 है, ये बन गया 3 और ये भी क्या बन गया 2, तो टोटल कितना साइड हो गया, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बन कैसे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी, ये तो 3 है ये, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4 इंटू व्हाट 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 3, एरिया ऑफ अ स्क्वायर 3 इंटू 3, तो 4 7 जा 28 प्लस 3 3 जा 9, तो 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 हो जाएगा आपका 7 और 1 37, राइट। तो हमें क्या निकालना है, एक आ गया 9 और एक आ गया 37, कौन सा है हमारे पास ऑप्शन, 9 और 37 वाला यही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर।